Good evening, students. So today our day is day 14. You can note down beta. This one date is 11/1/26. As you know, standard 12 science subject is chemistry. You can note down beta. My today topic is same, that is your revision of previous year question paper of the last session, the 2024 to 25, in which we are doing the set number 1, right? But in my last video I explained the section C last question, that's the 28th question. Today I am going to continue from the section D. So just have to look at the statement. 29th क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. बेटा 29th क्वेश्चन हमारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है. उसमें एक पैराग्राफ दे रखा है, बट वो पैराग्राफ में मोस्टली हमारे आंसर्स होते नहीं है. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस लिख दिए हैं, बट इट इज बिहाफ ऑन द CBSE केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन. गेटिंग? जस्ट हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप? बेटा ये क्वेश्चन हमारा केमिकल काइनेटिक में से आया है. व्हाट इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप? रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप की बात करें तो बेटा दैट इज अ स्लोएस्ट स्टेप व्हिच हेल्प्स टू फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन. आपने देखा होगा नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, बट दैट विल अंडरगो नंबर ऑफ स्टेप्स. वो नंबर ऑफ स्टेप्स शो करती हैं, बट among all that one you just have to find out which one is the slowest step in that. उनमें से कौन सा slowest step है that helps to find the rate of the reaction in that case. Getting? So बेटा आप simply बोलेंगे rate determining step है क्या? That is the slowest step and that helps to find your rate of the reaction. Getting? So that is the answer of your this one. You can note down बेटा slowest step. और हमारा जो rate of reaction है वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है? slowest step के ऊपर. Getting? I hope you understood your this first part of this 29th question. Come on the second part of this same question, that is your define complex reaction. बेटा अभी complex reaction की बात करेंगे. That question is also comes from your chemical kinetics from your NCERT book. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स में हमने दो तरह की मेन रिएक्शंस, टू टाइप्स की रिएक्शन डिस्कस की है. वन इज योर एलिमेंट्री रिएक्शन, सेकंड वन इज योर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पूछा गया है. बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू फर्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि सम टाइम एलिमेंट्री रिएक्शन भी आ जाता है ऑन द प्लेस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. बेटा यू मस्ट हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द एलिमेंट्री और व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स वन. ठीक है, तो बेटा यहाँ एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें तो एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. यूनिमोलिकुलर मतलब दैट विल अंडरगो ओनली वन स्टेप, जो सिर्फ एक ही स्टेप में हो जाती है. दैट इज योर एलिमेंट्री रिएक्शन. बट द रिएक्शन विच अंडरगोज मोर देन वन स्टेप मींस टू स्टेप या टू और मोर स्टेप, that is known as your complex reaction. So just have to note down the answer of this one. Reaction involving two or more step. You can write this one and you can also write series of the elementary reaction. As I told you, elementary reaction सिर्फ एक ही step करती है, but जब elementary reaction एक series में show की जाए, that makes your complex reaction. You can write the answer of this one or this one also. Out of these one, the thing that you felt that is easy, you can write the answer of that one for this particular question, complex reaction. Getting? Again I am repeating this question, complex reaction which undergoes more than one step, which undergoes two or more step, that is known as your complex reaction. Getting? I hope you understood your the second part of the same question, 29th one. Now come on the B part of the same question, that is what is the effect of temperature on the rate constant of the reaction. बेटा रिएक्शन की बात करें तो हमें पता है रिएक्शन में अगर रेट कांस्टेंट की बात करें, एज आई टोल्ड यू रिसेंटली, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, अगर हमें रेट निकालना हो. गेटिंग? एंड यू नो वेरी वेल व्हेनेवर देयर इज अ प्रोपोर्शनलिटी साइन, वेदर दैट इज अ डायरेक्टली और अ इनडायरेक्टली, देन ऑलवेज यू विल गेट एनी रेट proportionality constant on the place of this removable proportionality sign. Getting? Like that I am going to write here R equal to, when I am going to replace this proportionality sign, I must have to write the proportionality constant after replacing the proportionality sign. That is a way to remove your proportionality sign in any case. किसी भी केस में बेटा proportionality sign अगर exist करता है, how you can remove that? You just have to write its relevant rate constant on the behalf of your replaceable proportionality constant. Getting? So your this expression becomes R equal to small k, concentration of product, concentration of reactant. Now you can note down here this k. इस k को बोला गया बेटा क्या? Rate constant. अब उसने बोला है किसी भी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो यहाँ बात की जाए तो हमेशा इसके लिए की पॉइंट माइंड में रखना है, योर रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. What I said, your rate constant is directly proportional to temperature. जिससे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, the value of the rate constant also going to be increased. What's the reason behind that? Because both parameters are directly proportional to
each other. That's why I have written the answer. You can note down increase with increase in temperature. तो increase होता है जैसे temperature हम बढ़ाते रहते हैं. I think I hope you understood this second part of this 29th question. Now come on the this question that comes in your optional part. That's why I have written here or. So one more question in your this B part. You can note down. Why is molecularity applicable only for elementary reaction, but your order is applicable for elementary as well as a complex reaction? बेटा उसने बोला कि हमारे पास दो टर्म्स दी गई हैं, वन इज जो मॉलिकुलरिटी एंड सेकंड वन इज जो ऑर्डर. बट जो मॉलिकुलरिटी वो पर्टिकुलरली एलिमेंट्री ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब करती है, और जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एलिमेंट्री एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों को डिफाइन करता है. तो बेटा ऑलरेडी इन माय लास्ट question I explained what's the difference between an elementary and the complex type reaction. So that specific reason you can implement here. Elementary reaction that undergoes only one step and complex reaction in which that will shows the more than two step. Getting? So बेटा यहाँ बात करेंगे मॉलिकुलरिटी, तो मॉलिकुलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि मॉलिकुलरिटी ऐसी टर्म है बेटा वो पर्टिकुलरली एक यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन के ही होती है, राइट? जैसे हम बात करें अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एज आई टोल्ड यू नंबर ऑफ स्टेप्स या सीरीज ऑफ एलिमेंट्री प्रोसेस. तो एलिमेंट्री प्रोसेस की नंबर ऑफ मतलब कोई रिएक्शन है हमारी वो 2 या 3 स्टेप में हो रही है, तो उसके लिए आप देखेंगे अगर आप पहले स्टेप का मॉलिकुलरिटी देखेंगे वो अलग आएगी, सेकंड स्टेप की मॉलिकुलरिटी अलग आएगी, थर्ड की अलग आएगी. दैट मींस दैट इज गोइंग टू वेरी विद इन द ईच स्टेप. गेटिंग? बट हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा हमारी एक ऐसी टर्म है दैट इज एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट. व्हाट आई सेड, order is that term which is experimentally find out. तो उसके बिहाफ पे आप elementary और as well as molecularity complex as well as elementary reaction दोनों के लिए आपका order you can easily find out that one. Getting? तो आप simply इसमें आंसर लिख देंगे बेटा molecularity जो है of each elementary reaction in complex reaction may be of different hereby meaningless for the overall complex reaction. तो वही चीज बोली है बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन है और हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी अलग अलग होगी. दैट्स व्हाई दैट इज मीनिंगलेस. उसका कोई काम ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा. दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, मॉलिकुलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही कंसीडर करते हैं. आगे बेटा इसके बाद मैंने यहाँ पे शो किया, यू कैन नोट डाउन. वेयर एज दूसरी टर्म कौन सी ली बेटा हमने, ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप और एप्लीकेबल फॉर बोथ. ये तो पता ही है आपको, अभी मैंने बताया जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट होता है. और एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट होता है, बाय विच स्टेप, बाय द स्लोएस्ट स्टेप. बट इन योर रिएक्शन देयर आर द 2 or 3 स्टेप्स, जिसमें हम सबसे स्लोएस्ट स्टेप को मैंने अभी बताया, स्लोएस्ट स्टेप हेल्प्स टू फाइंड द रेट ऑफ दैट रिएक्शन. बट फास्ट रिएक्शन का कोई काम नहीं रहता बेटा, बट दैट ओनली हेल्प्स टू give the product of that particular reaction. Getting? तो यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैंने बता ही दिया एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट होता है. और दूसरा आप क्या बोलेंगे इसमें, वो स्लोएस्ट स्टेप के थ्रू फाइंड आउट होता है और इसी के बिहाफ पे हम एप्लीकेबल कर सकते हैं उसको फॉर द बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज द complex reaction. So that is the specific reason for the answer of this part. So tomorrow I will continue from the C part of this same question, 29th question of the same section D. So beta within that I am going to finishing my today's lecture. मिलते हैं बेटा, keep watching. मिलते हैं बेटा next video में within the next 30th question of this same section, section D. Thanks to all बेटा.